Hi kids, hope you're doing well. Let's start with our new chapter today, the Pied Piper. Alright, so this is a very interesting folk tale. Let's begin it now. Hamelin is a small and beautiful town in Germany. The town was infested with rats. The residents of the town were fed up with the rats. Read this story and know about them. So in these few lines हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी जर्मनी के एक ब्यूटीफुल टाउन हैमलिन में हो रही है. ऑलराइट, और ये टाउन बहुत सारे रैट्स से इन्फेस्टेड था. दैट मीन सडनली यहाँ पर बहुत सारे रैट्स रहने लगे थे और जो पीपल थे they were fed up and they were tired of those rats. Alright, so let's read this story. Hamelin is a small town in Germany. It stands on the bank of a large river. There are hills on both sides of the town. The town is very beautiful and quiet. There are many old buildings situated all around the town. Now, first stanza में, first paragraph में हमें यहाँ पर town को explain किया कि हैमलिन एक बहुत ही सुंदर टाउन है, स्मॉल टाउन है जर्मनी में, जहाँ पे एक रिवर है और दोनों ही साइड्स में ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं और कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स भी हैं जो कि उस टाउन को और प्रिटी बना रही हैं. Long ago, the town was suffering from a great problem. The cause of the problem was rats. They were everywhere. They fought with the dogs, chased the cats, bit the sleeping babies in the cradles, and ate up all the food people had in their houses. The people of the town were fed up with the rats. They had tried hundreds of ways to get rid of them, but failed. Now, long ago, ये जो beautiful Hamelin town था, was actually suffering with rats. ये जो rats थे ये इतने ज़्यादा थे that they became very powerful in that town. They were not scared of anything. अब वो dogs को bite कर रहे थे, cats को bite कर रहे थे, even जो cradles में, that means babies की जो वो छोटे से beds होते हैं उनको हम cradles कहते हैं. So उन cradles में जब babies सो रहे होते थे, when they were sleeping, वो rats उनको भी bite करते थे. So everyone was very tired. और उन्होंने बहुत सारे वेज ट्राई किए टू गेट देम आउट, बट नन ऑफ देम वर्क. एट लास्ट दे वेंट टू द मेयर ऑफ द टाउन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू डू समथिंग टू गेट देम रिड ऑफ द रैट्स. तो लास्ट में जो हैमलिन टाउन के पीपल होते हैं वो अपने मेयर के पास जाते हैं जो कि उस टाउन के रिस्पॉन्सिबल थे. ऑलराइट, और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज कुछ कीजिए ताकि ये रैट्स चले जाएं. The mayor was a greedy and cunning man. Now, greedy means लालची person. Someone जिसके पास already sufficient चीजें होती हैं, but वो फिर भी satisfied नहीं होते. उन्हें अभी भी और चीजें चाहिए होती हैं. That is being greedy. And cunning means someone who is very clever, like a clever fox. Now, the mayor says, "What can I do?" said the mayor. "I am paying 10 people every day to catch the rats. But even the best rat catchers can't make the rats go away." Now, जो मेयर होते हैं, he very easily says, "What can I do?" That means मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डेली 10 people को पे कर रहा हूँ ताकि वो इन rats को आपके ब्यूटीफुल टाउन से बाहर निकाल पाए, उन्हें पुश कर दे बाहर. One of his counselors advised him to announce a reward for anyone who would be able to drive the rats away. ना उन मेयर्स के जो काउंसलर्स थे तो उनमें से एक कहते हैं कि हम एक रिवॉर्ड रखते हैं और जिसने भी जो भी सक्सेसफुल होता है इन रैट्स को हमारे टाउन से बाहर निकालने के लिए उनको हम एक रिवॉर्ड देंगे. द मेयर लाइक द आइडिया. ही अनाउंस्ड दैट एनीवन हु कुड गेट देम रिड ऑफ द रैट्स वुड बी गिवन अ रिवॉर्ड ऑफ 1000 गिल्डर्स. नाउ जर्मन में उस टाइम में मनी को गिल्डर्स बोलते थे. तो 1000 गिल्डर्स मिलेंगे उसको जो कि इन रैट्स को टाउन से बाहर करने के लिए सक्सेसफुल होगा. उन मेयर ने अपने काउंसलर की एडवाइस को माना और इस एडवाइस को अनाउंस कर दिया. One morning when the people were busy chasing the rats in their houses, a strange looking man arrived in the town. Now one morning जब सब लोग हैमलिन टाउन में जब सब लोग इस बात में बिजी थे कि वो रैट्स को अपने घर से बाहर निकाले, तभी एक वियर्ड टाइप का मैन आ जाता है. द मैन वॉज टॉल एंड थिन. वो जो स्ट्रेंज मैन आए थे वो टॉल और थिन थे. His nose was a little longer. उनकी जो नोज थी वो थोड़ी लॉन्ग थी. He wore a long coat which was half red and half yellow.
उन्होंने एक लॉन्ग कोट पहना था जो कि हाफ रेड था एंड हाफ येलो था. He had a red clown's cap on his head and a long pipe which was hanging in his neck. उनके हेड पे एक क्लाउन की कैप थी which was red in color और उनके नेक पर या दैट मीन्स यहाँ पर एक पाइप हैंग हुआ था. Everyone watched him curiously as he crossed the bridge and walked through the narrow streets of the town. Everyone watched him curiously. That means Hamlin town में जितने भी people थे उन्हें बहुत ही curiosity के साथ देख रहे थे that who is this strange man जो कि हमारे town में आ रहे हैं. They all wondered where is he from and where is he going. They asked one another. So first they asked who is this strange man and because they didn't get any answer उन्होंने और आगे questions किए कि ये कहाँ से हैं और ये कहाँ पर जा रहे हैं. The man walked slowly through the streets. He did not look at him. ये जो strange man आए थे ये बहुत ही slowly Hamlin town की streets पर चल रहे थे और किसी की भी तरफ देख नहीं रहे थे. He did not make any kind of eye contact with the people over there. He did not look at the rats either. उन्होंने rats को भी नहीं देखा. He walked straight into the mayor's office and asked for the mayor. वो straight mayor के office में जाते हैं और mayor से बात करने के लिए पूछते हैं. He was taken to the mayor who was sitting in his office. He was discussing with his men about how to get rid of the problem of rats. वो उनको लेकर जो उनके वर्कर्स होते हैं वो उन्हें लेके जाते हैं स्ट्रेंज मैन को मेयर के पास और मेयर उस टाइम पर डिस्कस ही कर रहे होते हैं अपने मैन के साथ कि इस रैट प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है. Who are you? The mayor asked. Now the mayor asked कि आप कौन हैं? And he says, I am a Pied Piper. Replied the strange man. I have heard that you have announced a reward of 1,000 guilders for the man who can get you rid of the rats. If you promise to pay me the price of 1,000 guilders, I'll get you rid of the rats. Now, जब मेयर ने उनसे पूछा that who are you? तो he answered, I am a Pied Piper. मैंने सुना है आगे ही says कि मैंने सुना है कि आपने एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी इन रैट्स को आपके टाउन से बाहर कर देगा आप उसको 1,000 गिल्डर का प्राइस देंगे. नाउ अगर आप मुझे प्रॉमिस करें तो मैं इनको बाहर करने में आपकी हेल्प करूंगा. आई विल पुश देम आउट. द मेयर वाज अमेज्ड एंड हिज माउथ फेल ओपन. हाउ विल यू डू दैट? ही आस्क्ड. नाउ द मेयर जो थे बिकॉज दे हैव ट्राइड सो मेनी वेज टू गेट द रैट्स आउट ऑफ देयर टाउन, so he was very amazed that a man has come and he is very sure of himself. That means वो बहुत ही श्योरिटी के साथ हमें कह रहे हैं कि मैं इन रैट्स को टाउन से बाहर कर दूंगा. Just wait and see, replied the Pied Piper. Do you promise to pay me 1,000 guilders? Now जब मेयर उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे करेंगे तो Pied Piper very calmly says कि बस आप वेट करो और देखो. क्या आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे 1,000 गिल्डर दोगे? He asked again. Yes, cried the mayor with joy. If you can drive the rats away from the town, I promise to pay you 1,000 guilders. Now, mayor इतने हैप्पी हो गए थे because after trying so many things, उनके पास एक मैन आए जो कि बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे कि वो उनकी हेल्प करेगा. तो वो बहुत हैप्पीली विद जॉय कहते हैं दैट यस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इन रैट्स को टाउन से बाहर कर दे आई विल गिव यू 1,000 guilders. The Pied Piper stepped into the street. He took his pipe in his hand and began to play a sweet tune on his pipe. Now Pied Piper street पे आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे रैट्स होते हैं और वहाँ पर उनके नेक पे जो पाइप टंगा हुआ था लॉन्ग सा उसे प्ले करना स्टार्ट करते हैं. इट वॉज एक्चुअली अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वो बहुत ही स्वीट सी ट्यून प्ले करना स्टार्ट करते हैं. At first nothing happened, but suddenly there was noise and rats came out running out of all the houses. There were big rats, small rats, thin rats, fat rats, brown rats, black rats and all other kinds of rats. There was a rustling and a squeaking and a scurrying noise in the streets of Hamlin. All the rats gathered to gather around the strange pipe. Now, जैसे ही उन्होंने प्ले करना स्टार्ट किया, पाइड पाइपर ने अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करना स्टार्ट किया तो एट फर्स्ट तो कुछ नहीं हुआ बट स्लोली बहुत सी नॉइस आने लगी, रसलिंग की, किसी के भागने की. एंड वेरी सून ऑल टाइप्स ऑफ रैट्स केम ऑन टू द स्ट्रीट.
यू सी कितने सारे रैट्स यहाँ पे बोले हैं, स्मॉल, थिन, फैट एंड ब्राउन। वो सभी रैट स्ट्रीट पर आ गए और एकदम से स्करिंग नॉइस होने लगी हैमलिन की स्वीट पे। यू सी हाउ जब बहुत सारे रैट्स होते हैं तो रैट्स एक स्मॉल स्मॉल नॉइस निकालते हैं, सो दैट स्मॉल नॉइस वाज ऑल ओवर द टाउन। और अब वो सडनली पाइट पाइपर जिस स्ट्रीट पर अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे वहां पर हो गई थी। all the rats rushed to gather around the strange piper. सभी उस strange piper man के पास आ गए थे। Now you see this long pipe, this is the pipe, the musical instrument जो कि ये strange man play कर रहे हैं। The pied piper walked through the town blowing his pipe. Now जो pied piper थे वो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते पूरे टाउन में वॉक कर रहे थे। He was followed by a big procession of rats. You see कैसे इतने सारे rats पूरे टाउन से उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। It was because of the sweet tune. The Pied Piper walked up to the river. जो Pied Piper थे वो river की तरफ चले। He stepped into the river and walked through water. The rats also followed. There was a strong current in the river and it swept away the rats. In this way, all the rats perished in the river water. Now, जब वो river को cross कर रहे थे, तो Pied Piper was a big man. All right, he was very good in height. We can see that. So, water current होता है जिस speed में water flow हो रहा होता है. All right, so एक strong current आया और इन सभी rats को अपने साथ ले गया। So जो rats थे वो river में perish हो गए. That means वो drown हो गए। और इस तरह से सारे रैट्स टाउन से बाहर आ गए और अब वो वापस भी नहीं आ सकते बिकॉज वो तो रिवर में पेरिश हो गए। द पीपल ऑफ हैमलिन वर ओवरजॉयड। जो हैमलिन टाउन के, जो ब्यूटीफुल टाउन के जो पीपल थे वो ओवरजॉयड थे, वो बहुत खुश हो गए थे बिकॉज कितने टाइम से वो इन रैट्स से बॉदर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। द रैट्स हैव गॉन, दे क्राइड, एट लास्ट वी आर फ्री ऑफ द रैट्स। They threw their hats in the air and danced with joy. So they all exclaimed with happiness. वो सब खुशी से एकदम बोलते हैं कि rats चले गए और at last हम सब free हो गए हैं। और अपनी cats को हवा में उठाकर they threw their cats in the air और वो बहुत खुशी से डांस करने लगे। The Pied Piper came out of the river and walked straight to the mayor's office. जो पाइड पाइपर थे वो रिवर से बाहर आए और स्ट्रेट मेयर के ऑफिस में जाते। सो यू सी वो सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं है। नाउ यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, ही सेड टू द मेयर, आई फ्रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, नाउ गिव मी 1000 गिल्डर्स एज यू हैड प्रॉमिस्ड। नाउ यू सी वो सीधा मेयर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आपको अपना प्रॉमिस पुट करना होगा जैसा कि आपने कहा था। और वो कहते हैं कि मैंने जो भी जितने भी रैट्स थे इस टाउन में उन सब से आपको फ्री कर दिया है। अब आपको मुझे 1000 गिल्डर्स देने होंगे जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था। 1000 guilders, said the mayor. That's a lot of money. You only blew your pipe for a few minutes. I'll pay you 50 guilders instead. You see, you remember how I said you? यहाँ पे लिखा हुआ था in the story कि जो मेयर थे वो एक्चुअली में बहुत ही कनिंग थे। He was a very clever man. तो वो सडनली बार्गेन करते हैं एकदम से। वो कहते हैं कि आपने थोड़ी देर ही तो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया, उसके 1000 गिल्डर्स वो तो बहुत ज्यादा होंगे, तो आप 50 गिल्डर्स ही दूंगा मैं आपको 1000 में। तो कैसे उन्होंने अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया। The Pied Piper looked at the mayor angrily. You promised to pay me 1000 guilders, he said in a low, quiet voice. You must keep your promise. So you see, Pied Piper अभी भी शाउट नहीं की, बट उन्होंने बहुत ही गुस्से से एक वॉइस में अपनी बोला कि आपने मुझे 1000 गिल्डर्स का प्रॉमिस दिया था, अब आपको अपना प्रॉमिस रखना पड़ेगा. You can't break it. But the mayor laughed at him and said, I don't want to pay you even 50 guilders. All the rats have already gone and you can't do anything now. Take these 50 guilders and go. Now mayor हंसते हुए उनके ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो आपको 50 गिल्डर्स भी नहीं देना चाहता, पर लेकिन और अब तो सारे रैट्स चले गए हैं, तो अब आप क्या ही कर सकते हैं, ये लीजिए अपनी 50 गिल्डर्स और यहाँ से चले जाइए. तो he spoke very rudely to the Pied Piper. The Pied Piper shook his head in disbelief. Now he shook his head means उन्होंने अपना head disbelief में shake किया, as in no के way. All right.
he did not accept the money. उन्होंने money accept भी नहीं की थी because जो मेयर थे उन्होंने 1000 गिल्डर का प्रॉमिस किया था और दे वो सिर्फ 50 गिल्डर्स रहे थे. He came into the street and once again took his pipe in his hand. This time he started playing a sweeter tune than before. Now अब वो फिर से स्ट्रीट पर आते हैं और दोबारा से अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं एंड नाउ वो एक even sweeter tone प्ले करते हैं. दैट मीन्स पहले से भी अच्छी ट्यून प्ले करना स्टार्ट करते हैं. At once all the children in the city came out dancing of their houses. They gathered around him and began to shout and dance. The Pied Piper took them to the hillside. The parents and the mayor tried to stop them, but they could not do anything. All the children followed the Pied Piper, who was walking slowly along the street. तो आप देखो एकदम से ही जो चिल्ड्रन थे, जो पाइड पाइपर इतनी स्वीट सी ट्यून बजा रहे थे, अब उस ट्यून से जितने भी चिल्ड्रन थे उस टाउन के वो सब पाइड पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे. एंड पाइड पाइपर वाज गोइंग ऑन अ हिल साइड. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पेरेंट्स और मेयर थे वो सब उन्हें स्टॉप करने की ट्राई कर रहे थे, पर लेकिन वो ट्यून इतनी स्वीट थी कि चिल्ड्रन कुछ और सुन ही नहीं रहे थे और पाइड पाइपर के पीछे माउंटेन हिल पे जाते रहे. The Pied Piper finally entered a lonely den. Now जो Pied Piper थे वो एक lonely den में चले गए. That means वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो बहुत ही lonely den थी. All the children followed him. When the children had entered the den, the rocky door closed, and the children and the Pied Piper were never seen in the city again. जो Pied Piper थे वो finally एक lonely den में आ गए. और उस लोनली डेन के बाद जैसे ही पाइड पाइपर और चिल्ड्रन आ जाते हैं वो रॉक उस पे रख देते हैं, वो स्लिड हो जाती है रॉक वहां पे और वो डेन क्लोज हो जाती है. और फिर उसके बाद ना ही तो पाइड पाइपर को किसी ने देखा और ना ही उन चिल्ड्रन को. सो यू सी कैसे मेयर ने पाइड पाइपर का ट्रस्ट तोड़ा और वहां से वो इन चिल्ड्रन को ले आए. सो दैट मीन्स आपको अगर आप किसी को किसी चीज का प्रॉमिस करते हैं तो यू शुड ऑलवेज prove that you were very loyal to that promise. आप उस promise को break नहीं कर सकते. अगर आपने किसी को promise किया है तो make sure आप सोच समझ के promise करें और अगर आप उसको पूरा कर पाए तभी आप उस चीज का promise करें. So I hope you enjoyed this story. Now let's do a few exercises. So our first exercise is take the correct option. The people of the town were fed up with the three options हमें दिए हुए हैं, hags, cats, rats. तो यहाँ का correct answer होगा rats. Hamlin was a small town in Germany, India और Japan. तो Hamlin Germany country का एक famous town है. The great problem of the city was lions, rats और cats. तो जो great problem थी वो थी rats की. All the rats rushed to gather around the strange piper, because वो piper ही थे जो एक musical instrument play कर रहे थे और उस पर बहुत sweet tune play कर रहे थे. Pied Piper walked straight into the mayor's office. वो mayor के office में जाते हैं. Now next exercise is fill in the blanks. तो हमें यहाँ पर कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं और options दिए हुए हैं, out of which we have to choose कि हम कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्टली पुट करेंगे. द सिटी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट प्रॉब्लम. द डैश लाइक द आइडिया. द मेयर लाइक द आइडिया. वो मेयर थे जिन्हें काउंसलर का आइडिया अच्छा लगा था एक अनाउंसमेंट का 1000 गिल्डर्स देने का. द मैन वॉक स्लोली थ्रू द स्ट्रीट. जो पाइड पाइपर जिन्हें पहले एक स्ट्रेंज मैन बोला जा रहा था वो बहुत ही स्लोली स्ट्रीट पर चलकर जा रहे थे. He was followed by a big procession of rats. That means different kinds of rats, सभी टाइप के उनके पीछे पीछे आने लगे जैसे वो एक स्वीट सी ट्यून प्ले कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट पर. नेक्स्ट, द पाइड पाइपर shook his head in disbelief. वो क्यों थे डिसबिलीफ में? बिकॉज मेयर ने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया था. मूविंग ऑन, we have to tick for a true statement and cross for a false statement. Let's start. Hamlin was a beautiful town in Germany. Hamlin क्या जर्मनी सिटी का, जर्मनी कंट्री का एक ब्यूटीफुल टाउन था. दिस इज ट्रू. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाउन.
The rats were afraid of cats. जो rats थी वो cat से भी, जो rats थे वो cat से afraid थे, which is wrong. Rats नहीं थे cat से afraid, वो तो उन्हें bite करते थे. It was the cats that were afraid of rats. The Pied Piper took the rats to the river and they were drowned. This is true. Pied Piper अपनी ट्यून से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे जो ट्यून प्ले कर रहे थे उससे वो रिवर में ले गए, जिससे सारे रैट्स ड्राउन हो गए थे. So a correct statement. The mayor gave a handsome reward to the Pied Piper. This is a false statement. मेयर ने 1000 गिल्डर का प्रॉमिस किया था, बट उन्हें सिर्फ 50 गिल्डर्स देना चाह रहे थे, तो ये false statement. The Pied Piper became very happy getting a reward. Pied Piper happy थे reward के टाइम पे. This is a false statement. वो बहुत ज्यादा angry हो गए थे, because जितना अमाउंट उन्हें प्रॉमिस किया गया था उतना अमाउंट नहीं दिया जा रहा था मेयर से. Alright, so now let's move on to these question answers. First question, why were the people of Hamlin fed up with the rats? तो Hamlin टाउन के जो पीपल थे वो रैट से क्यों फेड हो गए थे, ये क्वेश्चन है. सो द आंसर वुड बी कि बिकॉज रैट्स केम इन अ बिग प्रोसेशन. दैट मीन्स रैट्स जो थे एक बहुत ही बिग अमाउंट में उस टाउन में आ गए थे, एंड दे वर बाइटिंग देयर डॉग्स, देयर कैट्स, दे वर ईटिंग देयर फूड, और जो क्रेडल्स में बेबीज होते थे उनको भी वो बाइट कर रहे थे. सो दे बिकेम वेरी डेंजरस एंड दैट्स व्हाई people of Hamlin were fed up with the rats. Next, how did the rats trouble the people of Hamlin? जो rats थे वो लोगों को कैसे ट्रबल कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने अब एक्सप्लेन किया था कि वो उनके डॉग्स को बाइट कर रहे थे, कैट्स को बाइट कर रहे थे, इन्फेस्ट कर रहे थे टाउन को, और जो उनके बेबीज थे उनको भी बाइट कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनाउंसमेंट डिड द मेयर ऑफ हैमलिन मेक? हैमलिन के मेयर ने कौन सी अनाउंसमेंट करी थी? तो हैमलिन के मेयर ने अनाउंसमेंट की थी कि इफ देयर इज समवन जो कि इन रैट्स को हमारे टाउन से आउट कर देगा, उसको हम 1000 गिल्डर का प्राइज देंगे. ये थी मेयर की अनाउंसमेंट. नेक्स्ट, व्हाट डिड द रैट्स डू व्हेन द पाइड पाइपर प्लेड हिज पाइप? रैट्स ने क्या किया जब पाइड पाइपर ने अपनी स्वीट ट्यून प्ले करी थी? सारे रैट्स एक बिग प्रोसेशन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैट्स जो थे उस हैमलिन टाउन में, वो सब ही पाइड पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे थे, बिकॉज वो स्वीट ट्यून से बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो गए थे, उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी वो ट्यून, तो इसलिए वो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग पाइड पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द रैट्स व्हेन दे एंटर्ड द रिवर? जब रैट्स रिवर में एंटर हुए तो उनके साथ क्या हुआ? ये हुआ था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट आया था जिसमें सारे रैट्स पेरिश्ड हो गए थे, और स्ट्रेंज मैन जो था यानी कि पाइड पाइपर जो थे वो सेफ थे. ऑलराइट, सो जैसे ही वो रिवर में एंटर करने जा रहे थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट आया और उन सभी रैट्स को पेरिश करके ले गया. व्हाई डिड द पाइड पाइपर बिकम एंग्री? पाइड पाइपर गुस्सा क्यों है? सो पाइड पाइपर इसलिए एंग्री हुए थे बिकॉज जितनी प्राइज मनी मेयर ने अनाउंस करी थी और पाइड पाइपर को प्रॉमिस करी थी कि अगर उन्होंने रैट्स को आउट कर दिया टाउन से तो हम आपको 1000 गिल्डर्स देंगे, उतनी मनी उन्होंने रैट्स बाहर जाने पर पाइड पाइपर को नहीं दी, बल्कि सिर्फ 50 गिल्डर्स देने का ऑप्शन. नाउ पाइड पाइपर एंग्री हो गए थे बहुत ज्यादा इस रीजन की. Alright, so I hope that you enjoyed this video. I hope you learned कि how हमें अपने promises हमेशा keep करने चाहिए और बहुत ही सोच समझ के promises करने चाहिए और उससे. I'll see you next time. Stay tuned for the next video. Thank you.